سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ جدہ پہنچ گئے۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، معاشی تعاون بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اہم وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام سعودی عرب پہنچے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما تجارت، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ غزہ کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی تبدیلیوں اور امت مسلمہ کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ آگے بڑھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس پر حملے کا مقدمہ دہشت گردی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سی ٹی ڈی حکام کی مدعیت میں تھانہ نصیر آباد میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ جعفر ایکسپریس 11 مارچ کو صبح 9 بجے کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی تھی، جبکہ دہشت گردوں نے دوپہر 1 بجے ریلوے ٹریک کو بارودی مواد سے اڑایا۔ 11 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں مسافروں کی کثیر تعداد سوار تھی۔ دہشت گردوں نے ٹرین اور مسافروں پر اسلحے اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت بحال، تورخم گیٹ 26 روز بعد کھول دیا گیا۔ تورخم گیٹ سے صرف مال بردار گاڑیوں اور مریضوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ پیدل آمد و رفت 2 روز کے بعد ہوگی۔ 15 اپریل تک بارڈر کے قریب متنازع ایریا میں تعمیراتی کام کی بندش ہوگی۔ پاکستان اور افغان حکام کے درمیان فلیگ میٹنگ جرگہ عمائدین کے کامیاب مذاکرات کے بعد تورخم بارڈر کو کھولا گیا۔ ماہ سیام کے تقدس کا خیال نہ جنگ بندی معاہدے کا پاس۔ اسرائیل نے بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کی پٹی میں رات بھر بمباری، مزید 27 فلسطینی شہید۔ 2 روز میں صہیونی فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 450 سے بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 48,577 ہو گئی۔ 1,12,041 فلسطینی زخمی۔ وسطی غزہ میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی اسرائیلی حملے۔ دیر البلح حملے میں اقوام متحدہ کا ایک غیر ملکی رکن شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ جنگ میں سول ڈیفنس کے 103 کارکن شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے باوجود مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ جب دستخط شدہ معاہدے موجود ہوں تو نئے معاہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ میں اہداف کے حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔ مذاکرات صرف جنگ بندی کی حالت میں ہوں گے۔ حماس کو تباہ کرنا اور یرغمالیوں کی رہائی ہماری منزل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکیاں۔ غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرنے پر ہزاروں اسرائیلی سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی رہائش گاہ کی طرف مارچ۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ نیو یارک، لندن اور پیرس میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی بنجامن نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ۔ وکیل مشال یوسف زئی کی بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست کاز لسٹ منسوخ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق برہم ہو گئے۔ کہا کہ ایسا کرنے سے پہلے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ آپ نے کس کے کہنے پر یہ کاز لسٹ منسوخ کی؟ جج عدلیہ کی آزادی پر تجاوز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کی 1 منٹ تک ملاقات نہیں کرائی۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا کہ چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں۔ کہا گیا کہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کریں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پوچھا، کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ سوالات طے کرنے کے لیے کارروائی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اپوزیشن الائنس کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ لطیف کھوسا اپوزیشن الائنس کی آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ خیبر پختونخوا بلوچستان کے مسائل پر تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ جماعت کا متفقہ فیصلہ تھا۔ علی مین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی سے آئندہ ملاقات میں تفصیلی بات ہوگی۔
सबको तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। कि मेरी तो सजेशंस यही थी कि आप असम्बली के इजलास में सारा कुछ ब्रीफिंग कर दे बजाय इसके कि आप कमेटी में कर लें। लेकिन शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर कितनी बड़ी लीडर को आप बाहर न रखें। देखो, फॉरेन अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन एक कमेटी थी, लेकिन वो हम वक्तन फवक्तन कोई कमेटियाँ बनाते भी है, जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो फिर डिसबैंड भी करते हैं। नहीं, देखो, दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए और इतने पॉपुलर लीडर को भी आप बाहर रख के, और KPK की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा इससे नबरज़मा हो रही है, वो भी स्ट्रगल कर रही है। हमने अपना मौक़िफ़ पहले भी बयान किया, असम्बली में भी बयान किया और जो कमेटीज़ थी एपेक्स कमेटी में उसमें अली अमीन गंडापुर साहब पहले लेके आए थे, तो मौक़िफ़ हमारा ऑलरेडी आ चुका। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि कल तमाम सियासी और अस्करी क़यादत सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। कल एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शरीक न होकर साबित किया गया कि मुल्क के साथ नहीं। कल फैसला हो गया कि पूरी अस्करी क़यादत यकज़बां होकर सियासी लीडरशिप के पीछे खड़ी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। जो भी फ़ैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिये पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरी जो इस वक्त अस्करी क़यादत है वो एक ज़बान होकर सियासी जितनी क़यादत है वो उनके पीछे खड़ी है और कल ये फ़ैसला हो गया है। हम वो सियासी जमात हैं जिसने इस मुल्क की बुनियाद में माशी तरक्की, डेवलपमेंट और दहशतगर्दी से पाक मुल्क बनाया है नवाज़ शरीफ की क़यादत में। इस मुल्क से दहशतगर्दों की और दहशतगर्दी की कमर तोड़ी थी, साफ़ किया था। इन्होंने दोबारा से वापस लेकर आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने अपने यहाँ सेफ़ हेवन्स बनाए और उसके बाद उन्होंने ये दहशतगर्दी के वाक़े, ये इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कल जो फैसला हुआ है कि जो इस तमाशे को बंद होना चाहिए। जिस तरह 2013 से 18 तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, ये जंग इंशाल्लाह उसी तरह लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 58वें इजलास में मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और सितम उजागर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारत कई दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़ है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन ने कश्मीरी अवाम पर जाबराना कवानीन का पर्दा चाक किया। अल्ताफ़ हसन वानी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 10,000 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियाँ और तकरीबन 8,000 दौरान हिरासत कत्ल की रिपोर्ट दर्ज हुई। इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। हसन नवाज को बरतानिया में 5.2 मिलियन पाउंड्स का टैक्स जुर्माना। बरतानवी हुकूमत की फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दिया गया है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड्स का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। चंद माह पहले बैंक करप्ट होने वाले हसन नवाज को टैक्स चोरी पर यह बड़ा धचका लगा है। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशा खाना का 1947 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में तोशा खाना के रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ का जायज़ा। 1990 से 2002 तक का तोशा खाना का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। ऑडिट हुकाम की इजलास में ये ब्रीफिंग दी गई है। सेक्रेटरी काबीना ने बताया है कि तोशा खाना का 2002 से अब तक का सारा रिकॉर्ड तफसीलात के साथ वेबसाइट पर मौजूद है। 2002 से पहले का डेटा आर्काइव में पड़ा होगा, जिस पर टाइम लग सकता है। तोशा खाना के तहाइफ ओरिजिनल होने या ना होने की तस्दीक से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ का भी जायज़ा। सेक्रेटरी काबीना ने बताया कि जो तहाइफ आते हैं हम उसे वैसे ही तोशाखाना में रख देते हैं। किसी भी सेक्रेटरी ने आज तक ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। कमेटी मेंबर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि तोशाखाना पर उंगली ना उठे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान GIT के सामने पेश। अलीमा खान से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात पूछे गए। बानी PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। GIT ने अलीमा खान से 2 घंटों तक सवालात किए। अलीमा खान GIT में पेशी के बाद वापस रवाना हो गई।
खबर है कि कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में खातून मुसाफिर की एयर होस्टेस से बदतमीज़ी। एयर होस्टेस ने खातून मुसाफिर से सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने का कहा। खातून मुसाफिर आपस से बाहर हो गईं। फ़ज़ाई मेज़बान ने कप्तान को मामले से आगाह किया। कप्तान कंट्रोल टावर से राबता करके तैयारा रनवे से वापस ले आया। ASF को तैयारे में फौरी तलब किया गया। कप्तान ने बाप और बेटी को ऑफलोड करने के लिए कहा। खातून ने गुस्से में फ़ज़ाई मेज़बान को मुक्का दे मारा। एयर होस्टेस की नाक से खून बहने लगा और एक दांत भी टूट गया। ASF ने दोनों बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। कमिश्नर कोयटा ने बाप बेटी से तहरीरी माफीनामा लिखवा कर जाने की इजाज़त दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान की गिरफ्तारी का मामला FIA ने 10 मर्चेंट अकाउंट्स शनाख्त कर लिए हैं। मजीद अकाउंट्स पर काम जारी है। ज़राए FIA के मुताबिक मर्चेंट अकाउंट्स के जरिए कॉल सेंटर के पैसे आते थे। कॉल सेंटर से मुंसलिक स्टाफ को पैसे भी इन्हीं अकाउंट से फ्राहम किए जाते थे। कुछ अकाउंट्स खाली हैं। अकाउंट्स कब खाली हुए, तफ्तीश जारी है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी FIA मुख्तलिफ अकाउंट्स की जांच कर रही है। पाक बहरिया और रूसी बहरिया के दरमियान दो तरफा छठी मश्क बैन मानसून का बहरा अरब में इनकाद किया गया। मश्क में रूसी बहरी जहाज़ों के अलावा पाक बहरिया के मुख्तलिफ असासे और पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी शरीक थे। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन का फ़िरोग और बहरी सलामती को दरपेश मुश्तरका ख़तरात के खिलाफ अज़्म का मुज़ाहरा करना था। कराची में रूसी बहरी जहाज़ों के क़याम के दौरान दो तरफा जहाज़ों के दौरे, हार्बर ड्रिल्स और टेल टॉप डिस्कशंस भी की गईं। रूसी बहरिया के मंदोबीन ने पाक बहरिया के सीनियर हुकाम से मुलाकातें भी की। ISPR का कहना है कि मैरीटाइम डोमेन में मुश्तरका मश्क का इनेकाद खित्ते में बहरी सलामती के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मज़हर है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इतवार 30 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। ताहम महकमा मौसमियात और माहिरीन फलकियात ने कहा कि मतला साफ होने पर रोयत हिलाल का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ सोमवार होने का कवी इम्कान है। माहिरीन फलकियात का कहना है कि शवाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 4 बजे पैदा होगा। इस तरह 30 मार्च को सूरज गरूब होने के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे होगी। लिहाजा 30 मार्च बरोज़ इतवार शवाल का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। चांद जो पैदा होगा वो 29 मार्च को तकरीबन दोपहर 4 बजे। तो 30 मार्च को जब हमारा 29वां रोज़ा है तो सूरज जब गरूब होगा तो उसकी जो एज जो है तकरीबन जो है 26 घंटे के बराबर है। जबकि एल्टीट्यूड जो है वो 13.8 डिग्री है, तकरीबन 14 डिग्री है। तो ये तमाम पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह 30 मार्च को सनसेट के वक्त हमें 10-12 मिनट के बाद हमें चांद नुमायां तौर पे नज़र आएगा। तो इंशाअल्लाह जो है ईद जो है 31 मार्च को होगी। 30 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा। उस टाइम तकरीबन चांद की उम्र ऑलमोस्ट 26 से 27 घंटे होगी। तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि 29 रमज़ानुल मुबारक यानी कि 30 मार्च को मगरिब के बाद चांद जो है वो उफ़क़ पर तकरीबन 70 मिनट तक बरकरार रहेगा। साइंसी लिहाज से इस बात की कवी इम्कानात मौजूद हैं कि इस साल रमज़ानुल मुबारक 29 रमज़ान के होंगे और यकम शवाल जो है वो 31 मार्च 2025 को मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद देखने के लिए अहम बात यह होती है कि सूरज गरूब होने के बाद चांद कितनी देर उफक पर रहता है और 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद तकरीबन 1 घंटे तक उफक पर मौजूद रहेगा और बगैर दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। सूरज गरूब हो जाएगा और उसके बाद चांद जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 1 घंटे से ज़्यादा, कई जगहों पे 70 मिनट्स भी इसका वो आफ्टर सनसेट है ड्यूरेशन। तो जब 70 मिनट टाइम है तो चांद के नज़र आने के गुड चांसेस हैं और इंशाअल्लाह जो ईद उल मुबारक है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक तो ये है कि 31 को होगी। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि शवालुल मुकर्रम के आगाज़ के लिए 30 मार्च बरोज़ इतवार रोयत हिलाल की शहादतें मौसूल हो जाएंगी और सोमवार 31 मार्च को पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी।